हाफिज बाबा। खैरियत से मंजिल पर पहुंचो। आमीन चाचा। चले बिस्मिल्लाह। जबरदस्त। ये काम अंजाम पा जाए तो फिर तुम ये खुदा के साथ मिलकर अर्तगल को ठिकाने लगाओगे और बहुत तेजी से करना होगा ये काम। पादरियों के इज्तिमा से पहले पहले मैं इस मसले से छुटकारा चाहता हूँ। जो आपका हुक्म मिले होगा। ज्यादा हो रहा है। सबसे अच्छा घोड़ा तैयार कराया है तुम्हारे लिए। बहुत नरम मिजाज, बहुत समझदार है। बहुत शुक्रिया चाचा। खुश रहा करो मेरी बच्ची। Bir o kadar ovaya hizmetin vardır. Senin ağzından çıkan her söze itimat edilir. Lakin saygısından diyemezsin. Ben onun yerine diyeyim. Aranızda istişare etmişsiniz belli. Mesele Süleyman Şah ise 2 kere durup düşünmek gerek. Bunu en iyi bilen sensin, bu doğru. Sabahlara kadar cırcır böcekleri gibi istişare etmişsiniz. Peki nereye vardınız? Gündoğdu'nun bey olmasını istersin de neden kendin bey olmak istemezsin? Benim makamda, Akça'da gözüm yoktur Kutlu, bilirsin. Olsa en zor zamanlarda bu işi pişirir. Toyu toplardın. peki niye Gündoğdu? Senin bundan çıkarın nedir? Sürü satışından gelen akçalar
Sadece siz değil. Ertuğrul'la babası yüzünden evlatlarını, kocalarını, sürülerini yitiren ahaliyi anlayacak mı? साहब ठीक तो है ना? ठीक हूँ, ठीक हूँ, मगर अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा है माँ। गुरदोगले ने आंखें खोल दी, जगा दिया जैसे नींद से। समझे नहीं क्या कह रहे साहब? Şam Melikesi ile Sultan Alaaddin'in evliliği çok mühim gün doğdu. Sultan Alaaddin, Haçlılara ve Moğollara karşı Eyyubi Selçuklu ittifakının güçlenmesi adına bu evlilikten doğacak çocuğunu veliaht olarak ilan edeceğini taahhüt etti. Sultan Alaaddin'in 9 levdiğlerini gördüm. 9 atı, 9 hilatı, 9 köleği. Gemiler içinde daha neler vardır? Selçuklu'ya da böylesi yakışırdı. Zor ama yerinde bir karar Ersogun Bey. Şimdi daha iyi anlıyorum Şam'a gidecek kervanı neden saklı tutmak istediğinizi. Lakin o kefereler bunu öğrenecek olursa buna engel olmak için her şeyi yapacaklardır. Allah razı olsun kardeş. Peki ya Kurdoğlu? Benim emmime itimadım tamdır. Lakin babamın ve Ertuğrul'un içine şüphe bir kere düştü. Süleyman Şah Otağ'dan onu gönderip benimle baş başa konuşmak isteyince anladım bir mesele olduğunu. Yalnız şunu iyi bil Gündoğdu. Kurdoğlu'yla cenk etmişliğim vardır. Bugüne kadar gördüğüm en iyi savaşçılardan biridir. Yiğittir. Üstelik bunca zaman babana hizmet etmişliği de vardır. Emin kurduğun tezgahtan alnı açık bir şekilde çıkmayı başaracaktır. Eyvallah Ersogun Bey. Ne zaman arzu ederseniz yola düşeriz. Biz hazırız Gündoğdu. Lakin önce birkaç lokma yemek yiyelim. Malum yolumuz uzun. Eyvallah. Hep beraber.
कहाँ भाग गई और क्यों भागेगी? खामोशी से घोड़ा खोला और बगैर बताए कहीं चली गई मेरे आका। लानत हो तुम सब पर। Beyim, gelen giden yok. Gün bitmeden gitmeliyiz. Epey yolumuz var da. Haklısınız. Dönelim artık. Alplere hemen haber verin. Hazırlansınlar. Gündoğdu Bey bizi bekletmek olmaz. Demek ki Kurdoğlu hain değilmiş ha. Hay canına yandı. Adamcağızın günahını almışız. Ne dedin? Boş ver sen. Hazırlan. Hadi yola çıkalım. भाग गई हो। वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुकी है बैतोजो। कितने सफा कातिल हो तुम, कितने बड़े शैतान हो। तुम्हारी हर चाल मालूम हो गई उसे। कैसे कैसे मालूम हुआ उसे ये सब? ये नहीं बता सकता मैं तुम्हें। इब्न अल अरबी का राज जान लिया है मैंने। अब तुम्हारी जरूरत खत्म हो गई। O sırra vakıf olabilmek için önce insan olmak gerekir. Sana da, kızına da ihtiyacın yok. Baksana, zafer kazanmana engel olacak bir Türkçe. Eşhedü en la ilahe illallah.
पूछने। रात यहाँ गुजारेंगे हम। रजा, सब लोगों को बता दो, कुछ जवानों को रात के पहरे पर लगा दो और बाकी सबको कहो कि आराम कर ले। जैसा आपका हुक्म भाई। घोड़ों को नीचे वादी में ले जाकर खुला छोड़ दो। सुल्तान के तोपों वाले घोड़ों का खास ख्याल रखना रजा। बहुत बेहतर भाई। हमारे भाइयों का खून इतना सस्ता नहीं है तितुश। ज्यादा करने की जरूरत नहीं। जंग तो अभी शुरू हुई है कोतरो। कहा था ना, मगर ये मत भूलना कि हमारा एक भी आदमी बच गया ना तो तुम्हारी नींदें हराम कर देगा।
बस तुम यहीं रुको मेरे बच्चों, इससे आगे तुम्हें इजाजत नहीं। मैं कुछ वक्त के लिए जा रहा हूँ, उस वक्त तक मेरा इंतजार करो, और जब तक मैं वापस नहीं आ जाता इस दायरे से बाहर नहीं निकलना। जी बहुत बेहतर मुर्शिद। अब तुम सुन लो बेटा, जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हारे मामले पर गौर करेंगे। उस वक्त तक तुम भी इस दायरे से बाहर मत निकलना। फिक्र ना करें आप, ऐसा ही होगा। अच्छा, अल्लाह हाफिज मेरे बच्चों। कहाँ जा रहे हैं ये अब्दुल रबी? मालूम नहीं। और कब तक वापस आएंगे? मालूम नहीं। तो क्या मालूम है तुम्हें? हद मालूम है मुझे अपनी हद। मुर्शिद कह गए हैं उनकी वापसी तक यहाँ से नहीं जाना, और ये भी कि वापसी पर तुम्हारे मामले पर गौर करेंगे। बैठ जाओ, इंतजार करो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऐ जमात सालिहीन, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह आपकी मजलिस को बरकत दे, दुआओं को कबूल और रूह को पाकीज़ा करे। खुशामदीद अजीजमंद, आपका आना बाइस बरकत है। आप नजरों से दूर जरूर थे, लेकिन दिलों से कभी भी दूर नहीं रहे। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। हमें और आपको यूं इकट्ठा करने वाले रब की हमदो सना है। यकीनन इसमें कोई भलाई है। रब का कोई काम हिकमत से खाली नहीं। वो हिकमत हमें मालूम भी ना हो, तब भी हम उस पर राजी हैं।
तालीम इस्लाम पर नजर डाले तो लगता है आखिरी जमाने में जी रहे हैं हम। उम्मत मुस्लिमा आखिरी जमाने ही की उम्मत है। हमारे नबी आखिरी नबी है और हम ढलते वक्त की उम्मत है। लेकिन क़यामत का वक्त सिर्फ अल्लाह ही के इल्म में है और हमारा काम तो सिर्फ ये है कि अपने हिस्से के पौधे लगाएं और जो भी नतीजा है वो हम लोग अल्लाह पर छोड़ दें। रोशनी, ये कपड़ा दबा के रखो जख्म पर। अर्तगल ठीक से दबाओ इसे। खून को रोकना लाजमी है। अर्तगल, आप ठीक है ना? तुम मेरी फिक्र ना करो रोशनी, परेशान ना हो। हकीम खातून को बुला कर लाओ। अभी लाई। हाजिर हो सकता हूँ मेरे आका? आ जाओ। अल्पार्गो ने आगा जान के खैमे में घुसकर अर्तगल भाई पर हमला किया। क्या खबरें हैं सलोनी? बताओ कुछ। क्या खबर जानना चाहती है शहनाज खातून? कब निकलेंगी आप इन चक्रों से? वो वक्त भी जल्दी आ जाएगा। तुम खबरें बताओ मुझे। सलोनी, क्या पूछ रही हूँ? जवाब दो मुझे। हाइमा खाला ने अपने भाई को क्या पैगाम भिजवाया था बताओ? ऐसा क्या काम पड़ गया अचानक? रिश्ता भेजा है। रिश्ता भेजा है मतलब? खैर तो है। किसके लिए चाहिए लड़की? क्या पूछ रही हूँ मैं? गुलतारो भाई के लिए। अर्तगल, चलो बस यहाँ से तुम्हें आराम की जरूरत है। ले जाओ श्लांति की लाश को यहाँ से। रुको। बोल नीच इंसान, बोल। कबीले का गद्दार तू ही था ना? मुझसे पूछ रहा हूँ। कबीले का गद्दार तू है या फिर बोलो? बोल, बता। बताना होगा तुझे। बोल। ये मर चुका है बेटा। ले जाओ इसे।
Medine'de kök salmış o görkemli ağaç utanıyor. Dalları kırılıyor. Mehdi gele, işler düzele. Allah ne dilerse o olacak. Yeis yok. Beklemek yok. Durmak yok. İslam'ın ilk günlerindeki gibi Rabbimize iltica ederek sürekli gayret edeceğiz. Bu nurun yayılması için gayret edeceğiz. Kıyamet bile kopmaya başlasa herkes elindeki fidanı diksin diye buyurmadı mı Hazreti Peygamber? Söyle bakalım Şehit Muhittin. Senin Endülüs'ten gelişin hangi maksada matuftur? Sen hangi fidanı dikmek üzere geldin buralara kadar? Allah Endülüs'ten hicret etmemi murad ettiğinde bu hicretin başka türlü seyahat olduğunu fark ettim. Anladım ki bu gidişin dönüşü yok. Temelli ayrılıyordum Endülüs'ten. Rabbime iltica ettim ve sordum. Rabbim, biliyorum ki her işte bir muradın var. Beni gurbete düşürmedeki muradın nedir? Rabbim kalbime şöyle ilham etti. Bu hicretin maksadı denizin dibinden çıkarılmayı bekleyen bir inci tanesi. Onu sen terbiye edeceksin. Sen yetiştireceksin. O da başkalarını yetiştirecek. İslam'ın bereketini insanlığa götürecek kutlu neslin imamı olacak. कहाँ जा रहे हो अल्लाह के बंदे? अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। तुम सब लोग ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? मसला क्या है आखिर? रोशनी बहन आका जान के खैमे में है, बहुत जख्मी है सुना है। ये क्या कह रही हो तुम? अल्फान को भी खंजर से आग लगी है। नाज बहन, होश में। इसके पीछे यकीनन कुर्दोगलो है बाबा। अर्तगल, हलीमा सुल्तान को भी सब मालूम है शुरू से। जिस दिन करातोई करके आदमी ने इनके खैमे पर हमला किया था उसी दिन से शक है इन्हें भी। इनके मरहूम वालिद भी यही समझते थे और शहजादे शहीद को भी यही शक है। अर्तगल के अलावा किसी से ये बात नहीं कही मैंने। अल्पार्गो उसके सबसे ज्यादा करीब था। वो ही नहीं सकता कि कुर्दोगलो को बताए बगैर वो ये काम कर गुजरे बाबा। अगर वो गद्दार है तो आजकल में पता चल जाएगा। कैसे? गुलदारों ने एक जाल बिछाया है गद्दार के लिए। अगर तुम सही हो तो जाल में फंस जाएगा कुर्दोगलो। इंशाल्लाह गद्दार बेनकाब हो जाएगा। तो आखिर बार हो गया ना मेरी बहन पर। सब कुछ तुम्हारी वजह से अर्तगल। ये सब तुम्हारा किया करा है। तुम्हारी लाई हुई मुसीबतें मुसलसल हमारा पीछा कर रही हैं। तुम चाहते क्या हो अर्तगल? शहनाज, रोशनी पर हमला करने वाला ये नहीं अल्पार्गो था। होश में रहो तुम जरा। वो सच जिस पर निकालना चाहिए उस पर निकालो।